Hello students, today we will discuss about typecasting in C language. Firstly we discuss about what is typecasting. Typecasting is basically converting one data type to another to perform some operation. This typecasting is also known as type conversion or data conversion, wherein the conversion is possible. For example, char to int and vice versa. In C language, we have two type of type conversion. Type conversion. First one is implicit type conversion. Implicit type conversion means कि the compiler performed type conversion automatically when the compiler necessary. कि आपके पास में बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास में कोई भी प्रोग्राम आप राइट करते हो, जब आपके प्रोग्राम में आपके कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट करता है, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप में आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली. कि आपके पास यूजर उसकी कोई भी कमांड नहीं देता और वो बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, वन डेटा टाइप टू अनदर में. इसको आप क्या बोलते हो, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. ओके, तो बेसिकली वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ conversion is usually performed by the compiler when necessary without any commands by the user, and thus it is also called automatic type conversion. And the rules for converting one data type to another in implicit type conversion. First one is char or sort type operand convert into int. Okay, during an operation, and the outcome data type will be int. Second rule is, if an operand of type long double is present in the expression, the corresponding operand will also be converted to long double. Same for the double data type. Third one is, an operand of float data type is present, then the corresponding operand in the expression will also be converted into float type, and the final result will also be in float. The outcome result data type will be float. Fourth one is, if an operand of unsigned long int is present, then the other operand will be converted in unsigned long int, and the final result will also be in unsigned long int. And the fifth one is, if an operand of long int is present in the other operand, then the operand will be converted in long int, and the result will also be in long int. The sixth one is, if an operand of unsigned int is present, then the other operand will be converted in unsigned int. And the result
will also be in unsigned int. Okay, basically the conversion of lower type to higher type. Okay, now we will discuss about the another type of conversion, that is, बट उससे पहले आप क्या पता होना चाहिए हिरार्की, कि अगर आप किसी भी टाइप कन्वर्जन की हिरार्की अगर चेक करना चाहते हो वो क्या होती है, लॉन्ग, डबल, डबल, फ्लोट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट एंड इंट, कैर, शॉर्ट इंट. ओके, और बेसिकली आपका टाइप कन्वर्जन क्या होता है, लोअर टाइप टू हायर टाइप. तो सबसे लोवेस्ट रैंक किसकी होती है, कैर की, और सबसे हायर किसकी होती है, लॉन्ग डबल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपका क्या होता है कि इसमें आपके कंपाइलर आपके डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता. उसमें आप एक कास्ट ऑपरेटर यूज करते हो, दैट इज आप जो भी कास्ट ऑपरेटर क्या होगा, जो भी आप डेटा टाइप यूज करते हो वो उससे पहले आप क्या करते हो, यूज करते हो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपके पास में आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली यूजर आप उसको पहले कंपाइलर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि मुझे क्या करना है, टाइप कन्वर्जन. कि आपके पास में इंट है, उसको फ्लोट में जैसे भी आप उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग लोअर टू हायर में आप चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, टाइप कन्वर्जन. कि यूजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या करता है, कन्वर्जन करता है, और कंपाइलर उसको रीड आउट करता है और कंपाइल करता है, ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता. तो बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन रूल्स आउट द यूज ऑफ कंपाइलर फॉर कन्वर्टिंग वन data type to another. Instead, the user explicitly defines within the program the data type of the operand in the expression. For example, कि आपके पास में क्या है, int a is equal to 9, int float b, फिर आप एक एक्सप्रेशन b में कुछ वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो, b is equal to float a प्लस 10.0. ओके, तो जो इसका b का जो आपका रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, आपका फ्लोट में. आपके पास में इंट है, डेटा टाइप आपने a लिया, लेकिन आपके पास में b क्या है, फ्लोट, और b में आप क्या करना चाहते हो, रिजल्ट असाइन करना चाहते हो. तो b में जो रिजल्ट असाइन करोगे वो क्या होगा, फ्लोट में. तो a को आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्लोट में, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, b को किस में कन्वर्ट करोगे, इंट में, और जो आप 10.00 लिख रहे हो इसको भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके लिए आप क्या करो कि आप a को फ्लोट में चेंज किया, b इज इक्वल टू फ्लोट a, तो a किस में कन्वर्ट हो गया आपका, a में, उसमें फ्लोट में, इंट टू फ्लोट प्लस 10.0. तो जो आपका 9 है वो आप कैसे लिखोगे, 9.0 प्लस 10.0. इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19.0. तो बी में जो वैल्यू आई आपकी वो भी क्या हो गया, फ्लोट टाइप. कि आप क्या कर सकते हो, इंट टू फ्लोट में जा सकते हो, लोअर टू हायर में जाते हो. तो आपने क्या किया, इंट टू फ्लोट में आपने क्या किया, चेंज किया. तो बेसिकली इसको आप क्या बोलते हो, टाइप, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ओके, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपका ये हो गया. इसके बाद आपके पास में कुछ होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस. कि आप क्या करते हो, अगर आप सिंटैक्स की बात करो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो उसमें क्या होता है, टाइप नेम एंड एक्सप्रेशन. ओके, तो टाइप नेम एक्सप्रेशन आपके पास में है. तो इसमें आप टाइप नेम में कोई भी डेटा टाइप में आप चेंज कर रहे हो डेटा टाइप. एक्सप्रेशन जो आपके पास है वो आपका क्या है, सिंटैक्स ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइब्रेरी फंक्शन इन सी.
लाइब्रेरी फंक्शन इन सी, कि आपके पास में सी लैंग्वेज में बहुत ही आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ में आपके पास में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिनको आप बेसिकली क्या करते हो, सिर्फ राइट करते हो और उनका यूज करते हो। बैकएंड में आपका क्या वर्क होता है आपको भी नहीं पता होता, लेकिन बेसिकली आप क्या करते हो, उस फंक्शन का यूज करते हो। जैसे प्रिंटफ आपका क्या हो गया, एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो आप यूज करते हो। जैसे आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट SQRT आप यूज करते हो, वो भी आपका क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन। तो आप उसको क्या करते हो, स्क्वायर रूट और उसमें वैल्यू डालते हो, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट होता है। तो ये आपके क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस, कि आपके पास में ABSI, ये आपका क्या है कि आपकी रिटर्न करेगा वैल्यू इन इंटीजर, रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर I। सेकेंड वन इज FABS, और इसमें आप क्या डाल रहे हो, FABS आप किस लिए यूज करते हो, रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डेसिमल और रियल नंबर, ऑफ ए रियल नंबर D। थर्ड वन इज आपके पास में सील D। फोर्थ वन इज कोस D। फिफ्थ वन इज tan D। सिक्स्थ वन इज साइन D। सेवन्थ वन इज पावर D1, D2। तो बेसिकली जो आप सील D यूज करते हो वो आपकी क्या करता है, राउंड ऑफ करता है, राउंड अप टू नेक्स्ट वैल्यू फॉर डबल वेरिएबल, कि डबल के लिए आप सील यूज करो कि आपके राउंड ऑफ करता है नेक्स्ट वैल्यू पे। कोस है, कोस tan साइन, ये आप ट्रिगोमेट्री के लिए यूज करते हो। फिर आपका आता है पावर, पावर के लिए आप क्या यूज करते हो, POW D1, D2। इसमें आपका क्या होगा कि रिटर्न करेगा D1 रेज टू पावर D2। तो आपके पास में D1 है, वो किसकी पावर रेज करोगे, D2, तो D2 की पावर D1। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वन है, वो है एट्थ वन इज कि फ्लोर D। तो फ्लोर में आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपके पास में फ्लोर में राउंड ऑफ करेगा किसमें, नेक्स्ट इंटीजर में, नेक्स्ट इंटीजर, राउंड ऑफ नेक्स्ट इंटीजर। सील में करता है राउंड अप टू नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू फॉर डबल वेरिएबल, और इसमें आपका करता है रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू, राउंड डाउन टू द नेक्स्ट इंटीजर। इसमें नेक्स्ट अप करता है, इसमें नेक्स्ट जो भी होती है डाउन करता है। नेक्स्ट वन इज फ्लोर के बाद आपका आता है SQRT, स्क्वायर रूट D। तो जो स्क्वायर रूट D आप यूज करते हो वो बेसिकली आप किसी भी डबल वेरिएबल या फिर आप इंटीजर का क्या करते हो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वन इज EXPD, ये आप क्या करते हो, रेज E टू पावर D, कि आपके पास में एक्सपोनेंशियल वैल्यू है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज log D, कि अगर आप किसी की नेचुरल लॉगरिथम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, log D आपका क्या है, एक वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज गेट कैर, नेक्स्ट पुट कैर। गेट कैर किस लिए यूज करते हो, कि आप क्या करते हो कि आपकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना आप स्कैन करवाना चाहते हो। जैसे स्कैनफ यूज करते हो तो गेट कैर आप स्ट्रिंग के लिए यूज करते हो, करैक्टर के लिए यूज करते हो। तो गेट कैर जो है वो आप बेसिकली किसके लिए यूज करते हो, रीड करने के लिए। पुट कैर जब आप यूज करते हो वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हो। एज ए प्रिंटफ आप स्ट्रिंग को या फिर किसी करैक्टर को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, पुट कैर, जैसे सी गेट कैर। फिर आपके पास में नेक्स्ट वन है टू स्काई सी, टू लोअर सी, टू अपर सी।
तो ये आप किस लिए यूज करते हो, जैसे आपके पास में टू स्काई है तो आपके पास में कोई भी करैक्टर है, स्ट्रिंग है, उसकी स्काई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो, टू स्काई। अगर आपके करैक्टर किस में है, अपर केसेज में, उनको लोअर में चेंज करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, टू लोअर। अगर आपके पास में लोअर में है और उनको चेंज करना चाहते हो आप किस में, अपर में, तो आप क्या करोगे, टू अपर। नेक्स्ट वन इज डिजिट, कि इसमें आप क्या करते हो कि करैक्टर आप जो एंटर कर रहे हो वो आपका डिजिट है या फिर क्या है, स्ट्रिंग है। डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, इज डिजिट फंक्शन यूज करते हो। गेट CHE, ये आप किस लिए यूज करते हो, ये आपका एक स्टैंडर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो आप क्या करते हो विदाउट आप कोई भी एंटर की प्रेस किए इसमें क्या कर सकते हो, आप डेटा को रीड कर सकते हो। और गेट CHE आपके पास में जो होता है वो आपकी डिस्प्ले भी करवा सकते हो और रीड भी करवा सकते हो। फिर आपका आता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज करते हो, क्लियर स्क्रीन बेसिकली आप जो यूज करते हो वो क्या होता है कि आपके पास में जो प्रीवियसली जो आपके पास में होता है स्क्रीन के ऊपर उसको क्लियर करने के लिए। ओके, तो ये आपके पास में कुछ बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन थे सी में जो आप यूज करते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।